નમસ્કાર મિત્રો, હું ઋષિ પાઠક નેચર ક્લબ સુરત, કોએક્ઝિસ્ટિંગ વિથ પાયથન અને વાઇલ્ડ લાઇફ એન્ડ નેચર વેલફેર ટ્રસ્ટ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, જેમ આપ સૌ જાણો છો, આપણે છેલ્લા 6-7 દિવસથી વાઇલ્ડ લાઇફ વેબિનારનું જે એક સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરેલી છે આપણે, એના અંતર્ગત આજે આપણો 7મો દિવસ છે. પહેલા અમે લોકો એવું વિચાર્યું હતું કે આજે વેબિનારની સિરીઝ જે છે એ આપણે એક અઠવાડિયા પૂરતી જ રાખીએ, પણ આપ સૌ મિત્રો તરફથી ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અને ખૂબ જ ઉત્સાહથી અમને ઇનપુટ મળી રહ્યા છે કે આજે કરી રહ્યા છીએ એ બહુ સારું છે. તો અમે નિર્ણય લીધો કે આજે આપણું જે સિરીઝ છે સિરીઝને આપણે વધુ લાંબી કરીએ. તો હવે અમે સિરીઝનું જે ડ્યુરેશન છે એ લોકડાઉન પતે એટલે કે ત્રીજી મે સુધી હવે આ સિરીઝ આપણે ચલાવીશું. રોજ આપણે નવા ટોપિક ઉપર ચર્ચા કરીશું. છેલ્લા 6 દિવસમાં જેમ આપણે અલગ અલગ વિષયો ઉપર અલગ અલગ તજજ્ઞો સાથે જે વાર્તાલાપ કર્યો, એમને જે નોલેજ શેરિંગ જે કર્યું, એ જ હવે એ જ દોર આપણે આવતા અઠવાડિયા સુધી પણ ચાલુ રાખીશું. જેમ આપણે ગઈકાલે જોયું કે ધ્રુવભાઈ પ્રજાપતિ અમદાવાદથી આપણી સાથે જોડાયા હતા, જેમને આપણને કરોડે ઘણી માહિતી આપી, જે જાણતા નથી એવી પણ વસ્તુ આપણને જણાવી. તેવી જ રીતે આપણી સાથે આજે જોડાયા છે શ્રી જોશ લોઈસ સર, જે વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયામાં વાઇલ્ડ લાઇફ ક્રાઇમ કંટ્રોલ ડિવિઝનના ચીફ છે અને વાઇલ્ડ લાઇફ ક્રાઇમ કંટ્રોલને પ્રિવેન્શન માટે, વાઇલ્ડ લાઇફ ક્રાઇમને રોકવા માટે ઘણી બધી કામગીરી કરી છે. તેઓ આજે આપણને વાઇલ્ડ લાઇફ ક્રાઇમને રિલેટેડ ઘણી બધી માહિતી આપશે અને ઘણું બધું જાણવા જેવું આપણને કહેશે. તો હું એમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જો સર હવે આપણે એમનો વધુ સમય ના બગાડીએ અને એમને કહીએ કે હવે પ્રેઝન્ટેશન આપણે સ્ટાર્ટ કરો તમે સર. Thank you, Rishi. I don't know how many of you are online, but thank you very much for joining the online session. And when Rishi starts speaking in Gujarati, I also feel good. કેમ કે મને પણ ગુજરાતી આવડે અને મને ગુજરાતીમાં જે લોકો ડિસ્કસ કરે એ સાંભળવા પણ મજા આવે છે. પણ આજે અમારા જે ડિસ્કશન જે છે અમે હિન્દીમાં રાખીએ, કેમ કે બહારના બહુ લોકો છે, એટલે આપણે ડિસ્કશન શરૂ કરીએ. આપણે 3 ભાગમાં ડિસ્કશન કરવાનો વિચાર છે આજે. We have to discuss 3 things today. First, we will discuss snaring. सबसे पहले हम लोग स्नेयर्स के ऊपर और स्नेयरिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा और उसके पीछे की कुछ कहानी बताऊंगा, क्या क्या प्रोडक्ट्स और कैसे दिखते हैं और कहाँ कहाँ पर दिखता है ये सब चीजें और कौन कौन बेचते हैं. और उसके बाद यदि आप लोगों को इंटरेस्ट है तो हम लोग थोड़ा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप मेरे से लाइव कमेंट्स में कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने के लिए. और मेरे यहाँ पर मैं अभी फिलहाल केरला में हूँ, यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कभी लैग या टेक्निकल डिफिकल्टी होगा तो माफ करना. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं. मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है स्नेयरिंग. फेवरेट मतलब फेवरेट इसलिए है क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्राइम में जब आप देखते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके का क्राइम होता है. कुछ अपना खुद का यूज के लिए करते हैं, कुछ लोग कमर्शियली करते हैं, कुछ लोग टारगेटेड हंटिंग करते हैं, मतलब जो चीज चाहिए वो उसके लिए हंट करते हैं. और स्नेयरिंग मेरे ख्याल से आप कोई भी फॉरेस्ट एरिया में देखो, वो सब जगह पे स्नेयरिंग का काम चलता है. स्नेयर बहुत सिंपल चीज है. आप एक रस्सी ले लो और तार ले लो और उसका एक फंदा बनाओ और कहीं पर लगा दो, आपको वाइल्ड एनिमल मिल जाता है. और हम सबसे पहले उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे. तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ. एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है. Rishi, I hope the screen is visible. Rishi, the screen is visible. Yes, sir, it's visible. Okay, I
Hope the screen is visible and I'll be chatting with Rishi also in between. Okay, तो जो हमारा जो आज का डिस्कशन है अंडरस्टैंडिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम, और मैं आपको ये जो स्क्रीन जो दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं। इसमें आपको शायद स्नेयर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ऑलरेडी स्नेयर देख लिया है। एक एक्चुअल लाइव स्नेयर है, एक फॉरेस्ट फ्लोर में इस प्रकार से स्नेयर लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं जो छोटी सी जो झाड़ी है उसके बीच में बीचों बीच एक क्लच वायर का स्नेयर लगा हुआ है, और मैं उस पर थोड़ा सा स्केच कर देता हूं, आप देख लीजिए। अभी आपको स्नेयर दिख सकते हैं। मतलब ये जो एरिया है जहां पर जो स्नेयर लगाया है ये एक्चुअली एनिमल पाथ है। एक वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड बोर होगा या टाइगर होगा या लेपर्ड होगा या कोई स्मॉल कैट होगा, ये सब जो चलते हैं, ये जो पाथ है एनिमल पाथ जो है, उस एनिमल पाथ में इसको एकदम इनविजिबल रखा जाता है, और एक जो जानवर इसके थ्रू जो पास करते हैं वो इसके अंदर फंस जाते हैं। अलग अलग टाइप का स्नेयर आपको दिखेगा, और जो मोस्ट कॉमन स्नेयर जो आपको मिलता है एक क्लच वायर का स्नेयर है। क्लच या एक्सीलेटर वायर का जो स्नेयर है वो सबसे ज्यादा मिलता है और डेडली है, क्योंकि उसमें आपका सिर्फ वाइल्ड बोर नहीं, टाइगर लेपर्ड भी इसमें मारा जाता है। तो स्नेयर के बारे में जब हम बात करते हैं, स्नेयर या ट्रैप्स सबसे कॉमन मेथड्स हैं। आपके स्क्रीन में एक लेग ट्रैप है, बाकी जितना भी है सब फोटोग्राफ स्नेयर्स का है। आप देखिए इसमें जो लेफ्ट में जो है टाइगर का पंजा जो दिख रहा है स्नेयर का मार्क है, और यहाँ पर ये जो टाइगर कब है वो स्नेयर में मरा हुआ है। वाइल्ड डॉग है जिसके कमर पे स्नेयर फंस गया है, वो निकल नहीं सकते। और स्नेयर और नेट्स जो यूज करते बर्ड ट्रैपिंग के लिए, और यहाँ पर स्लॉथ बेयर है, यहाँ पर लेपर्ड है, यहाँ पर हिरन है, टाइगर है। तो ऐसा नहीं है कि स्नेयर सिर्फ एक स्पीशीज के लिए यूज होते हैं, अलग अलग स्पीशीज के लिए यूज होते हैं और बहुत घातक रहता है। नंबर काफी बढ़ गया अभी, एक 2000 बिटवीन 2010 एंड 2019 2020 में ऑलरेडी 2 या 3 जगहों पे टाइगर का स्नेयरिंग का इंसिडेंट्स ऑलरेडी आ चुका है, लेपर्ड्स का भी आ गया है, तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और स्नेयर सिर्फ हमारे यहाँ का इश्यू नहीं है, स्नेयर ग्लोबल इश्यू है। काफी जगह पे, मतलब दुनिया में आप कहीं पे भी देखोगे तो ये वाइल्ड लाइफ हंटिंग के लिए स्नेयर का बहुत इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि स्नेयर चीप है, इफेक्टिव है, और एक बार लगाया फिर आराम से वहां पर रहते हैं। बंदूक ले जाने में तकलीफ है या फिर पॉइजनिंग करने में और प्रॉब्लम्स है। बाकी कोई भी हंटिंग टेक्निक आप यूज करोगे तो उसमें सब थोड़ा प्रॉब्लम। बंदूक ले जाएगा तो आवाज आएगा, लोग दिखेगा, और बंदूक सबके पास नहीं है। तो एक स्नेयर जो है आपका, इंडिया में एक स्नेयर बनाने में आपको 10 रुपए से नीचे कम पड़ता है खर्चा, और स्नेयर चीप है, साइलेंट है, एक बार लगा दिया फॉरेस्ट में रहते हैं। आप जब स्नेयर के बारे में आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको दुनिया भर से कई जगहों से स्नेयरिंग का फोटोग्राफ्स मिलेंगे। स्नेयरिंग सिर्फ इंडियन इश्यू नहीं है, स्नेयरिंग सब मेजर प्रॉब्लम। तो मैं आपको आज ये बताता हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्नेयर और ट्रैप्स जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है इसके बारे में हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है। हम लोग सोचते हैं भाई हंटिंग मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड हंटिंग है, जहां पर क्या बोलते हैं, गैंग्स चले जाते हैं, अपने पास बहुत सारे इक्विपमेंट ले जाता है, और उसको हम लोग हंटिंग मानते हैं। और जो स्नेयर या ट्रैप्स लगा के जो हंटिंग करते हैं हम उसको इतना सीरियस नहीं मानते। और मोस्टली जो लोकल जगहों पे क्या क्या टाइप का स्नेयर्स और ट्रैप्स यूज करते हैं हमको पता नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीजें। ये जो फर्स्ट वाला जो है प्लास्टिक जो फिशिंग लाइन से बना हुआ स्नेयर है, और ये क्लच वायर स्नेयर है। और ये स्नेयर नहीं है, ये एक्चुअली एक बॉम्ब बोलता है। ये अपना वाइल्ड बोर को मारने के लिए काफी यूज करते हैं। और यहाँ पर जो हंटिंग मेथड यूज किया था स्मोकिंग है। और ये सबसे जो नीचे जो है ये ट्रैप है, आप देख सकते हैं इसमें बार्ब्ड ट्रैप है। इसमें जो भी जानवर अपना पैर रखेगा या मुंह रखेगा उसको चारों तरफ से ये बार्ब उस पर घुस जाएगा। तो इस तरीके का ट्रैप्स और इस तरीके का हंटिंग मेथड्स के बारे में हमको लोकल लोगों से या फिर लोकली जो पोचिंग पहले करते थे उनसे काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले हमको पता करना चाहिए भाई आपके यहाँ पर किस तरीके का ट्रैप कौन कब कैसे यूज करते हैं। और स्नेरिंग और इस तरीके का हंटिंग प्रैक्टिस को रोकने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमको सबसे पहले टेरेन को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। मतलब काफी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं स्नेर रिमूव करने के लिए, तो उनको पता होना चाहिए भाई आपका टेरेन कहाँ पर है, मतलब टेरेन कैसे है और उसमें किस जगह पे स्नेर लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ पर स्नेर लगा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। बेस्ट टाइम फॉर रिसर्च, और मेरा अनुभव है आप स्नेर और ट्रैप सर्च करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा आपको सर्च करना चाहिए सुबह का टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे। टीम कॉम्पोजिशन, मतलब आपके पास कितने लोग चाहिए और कौन से टाइप का लोग चाहिए। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो है एक एंटी स्नेर टीम कर्नाटक स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड्स है, फॉरेस्ट वॉचर्स है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग इस ग्रुप में शामिल है जो स्थानीय लोग हैं जिनको हंटिंग प्रैक्टिसेस और लोकल हंटर्स और उन लोकल हंटिंग रूट्स के बारे में पता है। मतलब काफी लोकल इंटेलिजेंस लेने के बाद उन लोग सर्चिंग करते हैं। सीजनल डिफरेंसेस होते हैं और कुछ जगहों पे, जैसे कि यहाँ पर जो नीचे जो आप दिख रहा है ये गन्ने का खेत है और यहाँ पर एक लेपर्ड का ट्रैपिंग हुआ था। मतलब आप जब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते हैं आपको पता चल जाता है काफी चीजें, तो आपको लोकल इंटेलिजेंस और लोकल इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। क्या क्या हम लोग स्नेरिंग और इस तरीके का ट्रैपिंग के टाइम पे क्या क्या हमको सीखने मिलता है। यहाँ पर आपको जो फोटो दिख रहा है ये एक्चुअली स्नेर नहीं है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइन है। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है, जो किसान जो है अपने खेत के बगल में इसने एक खूंटी गाड़ दिया और उसमें लाइव वायर लगा दिया और उसने ये जो लाइव वायर है उसके ऊपर एक बल्ब भी लगा दिया। मतलब जब आपका जो लाइन है वो ये लाइन जो है करीबन 500-600 मीटर चल रहा था और इस पे एक कॉर्नर पे उन्होंने बल्ब लगा के रखा, क्योंकि उनको जब पूछा गया था तब उन्होंने बताया साहब ये जब हमारे लोग जब चलते हैं उनको पता होना चाहिए करंट लगा है कि नहीं लगा है। तो इस तरीके के बहुत डेडली चीजें भी इन लोग लगाते हैं। तो जब स्नेरिंग और एंटी स्नेरिंग वॉक जब करते हैं तो आपको देखना चाहिए भाई आपको किस तरीके का अलग अलग चीज मिलता है और हर एक एरिया में उसका अलग अलग चीज आपको मिल सकता है। मतलब ये जो चीजें हैं ये आपको ज्यादातर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलेगा इस तरीके का। और चलो आगे देखते हैं। और दूसरा एक खतरा है जब आप स्नेरिंग और एनिमल जब ट्रैप्स में जब फंसते हैं, एक सबसे बड़ी समस्या है कि आप जो लाइव एनिमल के साथ कैसे डील करेंगे। काफी लोगों ने ये बताया कि भाई हमने एंटी स्नेर पे गया है या फिर हम जब कुछ जानवर के बारे में सुना है भाई वो स्नेर में फंसा हुआ है। सबसे पहले आपको ये देखना है भाई आपके पास यदि एक एनिमल ट्रैप में फंसा पड़ा है, जैसे कि यहाँ पर एक दो सिचुएशन, एक तेंदुआ यहाँ पर ऊपर लेग ट्रैप में पड़ा है और यहाँ पर दूसरा एक लेग ट्रैप में पड़ा है और उसको हैंडल कैसे करें। मतलब आप जब लाइव एनिमल्स के साथ जब डील करते हैं, वो तेंदुआ हो या फिर सिगट कैट हो, बहुत केयरफुली आपको डील करना पड़ेगा। मतलब क्राइम सिचुएशन है, आपके पास रेस्क्यू का भी अनुभव होना चाहिए। जो ऊपर जो है लेपर्ड जो है उसको ट्रायंगुलाइज करके निकाला गया था, नीचे जो लेपर्ड है उसको ट्रायंगुलाइज भी किया और उसको और भी तरीके से, मतलब जो वाई स्टिक जो बताते जो आपको दिख रहा है उसको रिस्ट्रेन भी किया और उसके बाद उसको ट्रैप से निकाला। मतलब आपको जब आप लोकल हंटिंग और स्नेरिंग के बारे में आप जब काम करते हैं आपको ये सब चीज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और समस्या हमारे सामने है कि भाई हंटिंग और लोकल कम्युनिटीज, ये आप और मैं, यदि हम लोगों को ऐसा लग रहा है भाई चाहे हंटिंग नहीं होना चाहिए, आज के तारीख में हम लोग अभी काफी सुन रहे हैं लॉकडाउन का टाइम है, काफी हंटिंग हो रहा है, काफी वाइल्ड बुश मीट का ट्रेड हो रहा है। मगर जब कुछ केसेस में हम लोग जब देखते हैं तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए भाई कल्चर क्या है वहां का। मतलब कुछ जगहों पे लोगों को कुछ लगता तो है ही नहीं भाई वो कुछ इलीगल काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो हंटर है उनके पास से कुछ बर्ड्स मिले हैं और वो एक ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, एक स्टिकी गम का यूज करते हैं। जब उसको पूछा गया कि उसके लिए तो आम चीज है भाई, मैंने जंगल आया था, मुझे शिकार करने का था,
मैंने शिकार कर लिया, मैं उसको ले जा रहा हूँ। और यहाँ पर एक खरगोश को लेके एक बंदा है, उसको जब पूछा गया था वो बोला मैंने फंदा लगा के पकड़ लिया, वो हमारे खेत में तो है, हम जंगल तो नहीं जाते। और यहाँ पर थोड़ा प्रोफेशनल बंदे हैं जो लेग ट्रैप्स लेके काम करते हैं। मतलब इन लोगों के साथ जो हंटिंग और ट्रैपिंग करते हैं उनके साथ डिस्कस क्या कर लेंगे, कैसे आप इस चीज को आगे लेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आप बिल्कुल जाके कम्युनिटी में जाके नहीं बोल सकते कल से आप हंटिंग नहीं कर सकते। आपको कल्चरल चीज के बारे में पता होना चाहिए और आपके पास अच्छी कम्युनिटी रिलेशंस होना चाहिए। कम्युनिटी रिलेशन मतलब आप सिर्फ जाके एनफोर्समेंट का काम नहीं करेंगे, आप कम्युनिटी के साथ बैठकर चर्चा करेंगे, उनसे अंडरस्टैंड करेंगे भाई उनका क्या क्या समस्या है, फिर उसके बाद आप उनके साथ काम करेंगे जो हंटिंग पे वो कम से कम ध्यान दे और हंटिंग उन लोग रिड्यूस करें। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि भाई ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग वर्सेस कैजुअल हंटिंग। ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग मतलब आपका जो बंदा जो हंटिंग करते हैं उसका मन में भाई एक उद्देश्य है, तो मुझे आज एक हिरण मारना है और उसका मीट लेने का या फिर उसका चमड़ा निकालने का, उसको बेचना, पैसा कमाने का। या फिर टाइगर पोचिंग हो सकता है या लेपर्ड पोचिंग हो सकता है या फिर कुछ चिड़िया पकड़ के वो बेच रहा होगा, जो भी ऑर्गेनाइज्ड। मतलब ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग मतलब उसमें एक हंटर है या फिर एक मिडलमैन है, एक ट्रेडर है, आगे लोग हैं, मतलब वो लोकल कंजम्पशन के लिए नहीं है। बाकी जो लोग हैं जो कैजुअल हंटर्स है, मतलब सेल्फ कंजम्पशन हो गया या अपना फैमिली, खुद का अपना फैमिली और अगल बगल का 2-4 लोगों के लिए, मतलब वहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है, वो हंटिंग उनका कल्चर में है, वो हंट करते हैं और हंट में जो उसको मिल रहा है वो बाकी दूसरों के साथ मिल बांट कर खाते हैं। मतलब आपको ये देखना चाहिए आप जिस हंटिंग और पोचिंग के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, आप डील कर रहे हैं, वो किस टाइप का है। और ये भी देखना चाहिए पुराने भी कुछ लोगों ने मेहनत किया होगा वहां पे हंटिंग और पोचिंग रोकने के लिए, आज पहली बार नहीं कर रहे, तो क्या क्या पहले किया और क्या क्या सक्सेसफुल हो गया, क्या क्या फेल हो गया। और आपको ये भी देखना चाहिए जो स्नैरिंग और ट्रैपिंग जो स्ट्रे इंसिडेंट्स है या फिर ऑर्गेनाइज्ड हंटिंग है। मतलब मेरे ख्याल से 2 दिन पहले भी महाराष्ट्र में कुछ ट्रैप्स मिले हैं जहां पर तेंदुआ फंस चुका है और वो ट्रेडिशनली जो टाइगर हंटिंग जो करते हैं उनका ट्रैप्स है। तो आपको देखना चाहिए भाई ये स्ट्रे इंसिडेंट है या फिर वहां पर एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग इन्वॉल्व है, वहां पर कोई हंटर बायर का कोई नेक्सस चल रहा है कि नहीं। और जो फ्रंटलाइन जो फॉरेस्ट स्टाफ है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके का इंसिडेंट उन लोग जो देखते हैं तो देखिए उनको पता भी होना चाहिए भाई ये स्ट्रे इंसिडेंट है या फिर ये ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट है। और काफी वॉलंटियर्स का भी यहाँ पर जरूरत पड़ते हैं। मतलब आप जब बफर एरियाज में रहते हैं या फिर उधर कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट और वॉलंटियर्स लोकल इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं। मतलब आपने कुछ बाहर के लोगों को देखा या फिर कुछ सुना है तो यहाँ पर आपके पास काफी इंफॉर्मेशन आते हैं, वो आप उसको डिपार्टमेंट के साथ देना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तब आगे का चीजें पता चल जाती है। और प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस गैदरिंग, जब वाइल्ड लाइफ क्राइम के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज है प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस। प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ में एक बार एक क्राइम हो चुका है, मतलब हो गया है, मान लीजिए एक टाइगर का डेथ हो गया, किसी एक शिकारी ने, एक ट्रैपर ने, एक पोचर ने एक टाइगर को मार दिया, आप कितना भी कोशिश करेंगे आप उसको वापस ला नहीं सकते। मतलब आप शिकारी को पकड़ेंगे, आपके पास टाइगर स्किन मिल गया, उसका दांत मिल गया और उसको जहां पर दफना है वो सब जगह मिल गया, मगर आप टाइगर वापस नहीं ले आ सकते। वाइल्ड लाइफ क्राइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई एक बार क्राइम हो चुका है तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल क्राइम। तो मान लीजिए मतलब किसी ने किसी का गाड़ी लूट लिया, यदि आपको गाड़ी वापस मिल रहा, रिकवरी हो गया, गाड़ी आप वापस दे सकते हैं, कुछ डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, बट वाइल्ड लाइफ क्राइम में आपको डैमेज कंट्रोल का अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। लाइव एनिमल हो या डेड एनिमल हो, कोई भी टाइप का क्राइम हो, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस के ऊपर। मतलब क्राइम होना नहीं चाहिए। हमेशा क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट और एनजीओ के साथ कैसे काम हो सकते हैं, बड़ा समस्या है। क्राइम कंट्रोल पे मैंने काफी टाइम मेरा टीम हम लोग काम करते हैं, और एनफोर्समेंट एजेंसीज और एनजीओ कैसे काम कर सकते हैं। एनफोर्समेंट एजेंसीज और एनजीओ बहुत आराम से साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि वो तब हो सकता है जब एनफोर्समेंट एजेंसी और एनजीओ अपना जो काम है, जो एनजीओ का काम है, जो सिविल सोसाइटी का काम है, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन आपको एनफोर्समेंट एजेंसी मतलब आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो या पुलिस किसी को देना है।
फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकता है जो एनजीओ का जो पीपल है, लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने गांव इलाके में उन्होंने सर्च किया, उनको पता चल गया भाई किसी के घर में उन्होंने काफी तार स्टॉक करके रखा है, और उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया। और यहाँ पर आपके सामने 6 7 5 लोग खड़े हैं, में एनजीओ कौन है, गवर्नमेंट वाला कौन है, आपको पता नहीं चलता। मतलब आपको मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। नीचे जो पिक्चर है यहाँ पर आपको आर्म्ड गार्ड्स भी दिख सकता है, कुछ स्थानीय लोग हैं और कुछ एनजीओ का इन्फॉर्मर मतलब एनजीओ का लोग भी है। यहाँ पर हंटिंग हो गया था, तो हंटिंग हो गया, इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो जो सिविल सोसाइटी का बंदा है वो खुद इन्वेस्टिगेट ना करे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ले आया। और थोड़ा इलाके में थोड़ा प्रॉब्लम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना आर्म्ड गार्ड्स को ले आए, और डीएफओ साहब मतलब एसीएफ है, और वो लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको साथ में काम करना जरूरी है, एक दूसरे के साथ एंगेज करके काम करना चाहिए, और हायर लेवल ऑफ एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मतलब आप सिविल सोसाइटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब साथ में काम करते हैं, दोनों साइड से एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी चीज होना चाहिए, अच्छी से होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म प्लान्स भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक दिन गया और कुछ स्नेहस निकाला या कुछ ट्रैप्स निकाला, गांव में जाके वर्कशॉप किया, या फिर 2 4 लोगों से बात कर लिया, बोला आप हंटिंग मत करो, पोचिंग मत करो, और वापस आए, वैसे काम नहीं चलता। लॉन्ग टर्म प्लान्स हमारे पास होना चाहिए। हमारा लॉ क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत साफ साफ बताया है, वेपन मतलब आप कोई भी हंटिंग के लिए जो वेपन यूज जो करते हैं, इंक्लूड्स एम्यूनेशन, बोज, एरोज, एक्सप्लोसिव, फायर आर्म्स, हुक्स, नाइव्स, नेट्स, पॉइजन, मतलब बहुत सारे चीजें यहाँ पर दिए हैं। कुल मिलाकर एक जानवर को, वाइल्ड एनिमल को मारने के लिए आप कोई भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज को वेपन माना जाता है। उस वेपन जो है वो वेपन सीज हो सकता है, किसी ने भी वेपन लेके कोई भी प्रयास किया हंटिंग का, वो भी अरेस्ट हो सकता है। मतलब यदि आप वाइल्ड लाइफ क्राइम में कुछ काम करना चाहते हैं, कि वाइल्ड लाइफ क्राइम के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको लीगल मैटर भी पता होना चाहिए। यहाँ पर एक सिंपल चीज है, हंटिंग के लिए जो वेपन यूज करते हैं उसका डेफिनेशन आप देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा, मतलब आपको पता चलना चाहिए क्या क्या चीज वेपन हो सकता है। चलो इसके साथ मैं अभी जो फर्स्ट सेशन जो है स्नेहस और ट्रैप्स का मैं बंद कर रहा हूं, और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं। any questions about snares or traps or hunting communities we can discuss for say about 5 minutes. Rishi, can you hear me? Yes, I can. Hello. Yeah, Rishi, I'm opening for a short discussion if anybody wants to ask a question. मतलब किसी को Okay. कोई भी ट्रैप्स और स्नेयर्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो लोग क्वेश्चन पूछ सकता है, और नहीं होगा तो हम लोग अभी कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। मैं 1 मिनट के लिए वेट करते हैं। Okay. ओके, नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट सेशन में मैं एक्चुअली आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कॉमनली ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स। मतलब जो सामान्य मार्केट में क्या क्या आपको वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिलते हैं, और कुछ फोटोग्राफ्स है, इसमें कोई लंबा प्रेजेंटेशन नहीं है, और उसमें मुझे कमेंट्स चाहिए आपसे, मतलब एक क्विज टाइप का चले जाएगा। अच्छा, So there is a few comments are coming. अच्छा अच्छा अच्छा, okay, let me answer a few questions because that is the most interesting thing. Okay, any personal experience to deal with local community? Yes, जयेश कुमार, काफी एक्सपीरियंस है लोकल कम्युनिटीज के साथ डील करते हैं। लोकल कम्युनिटीज के साथ आप डील करने के टाइम पे सबसे पहले आपको समझना चाहिए कम्युनिटी कौन सा है और उनका परसेप्शन क्या है, हंटिंग और पोचिंग और एनिमल्स को लेके उनका आइडिया क्या है।
और आप हमेशा जब बाहर से एक कम्युनिटीज के साथ मिलने जाते हैं तब आप हमेशा मतलब आप बाहर के लोग हैं, तो कम्युनिटीज के साथ आप सबसे पहले पता करना चाहिए भाई वो कम्युनिटी क्या चाहते हैं, मतलब वो मीट ईटिंग कम्युनिटी है या फिर हंटिंग उसका ट्रेडिशनल थिंग है, या हंटिंग पे उन लोग कितना डिपेंडेंट है, हंटिंग के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है, आपको ये सब कुछ समझना चाहिए। और इस चीज को समझने के बाद आप उनके साथ डायलॉग्स, मतलब कभी कम्युनिटीज के साथ काम करना मतलब एक दो साल नहीं, कभी 3 4 5 साल लगते हैं कम्युनिटी का एक एक बिहेवियर को चेंज करने में, उससे ज्यादा भी लग सकता है। ओके, आई होप आई आंसर्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास सब इंफॉर्मेशन हो भी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो एनजीओ क्या करे? बड़ा ट्रिकी सवाल पूछा है आपने। लोकल डिपार्टमेंट यदि एक्शन नहीं ले रहा है, देखो ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन लेते हैं। यदि लोकल स्टाफ एक्शन नहीं ले रहे तो आप सीनियर स्टाफ को डीएफओ लेवल पे किसी को बता दीजिए। मोस्टली डीएफओ लेवल पे जब इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं लोग तुरंत एक्शन ले लेते हैं। और आजकल वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी है, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के पास यदि आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो लोग तुरंत एक्शन ले लेते हैं। आज भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब रैंडम मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आया था, वो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में किसी को दे दिया, तुरंत एक्शन ले रहे हैं। ओके, तो आपको करना चाहिए। सर, हाउ दैट वायर विथ बल्ब स्नेयर वर्क? वेल, वो मैं नहीं बताऊंगा। स्नेयर कैसे लगाने का मैं कभी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, मतलब मेरा यहाँ का कुछ लोकल बंदा है, उन्होंने बोला भाई मैंने यूट्यूब में देखे स्नेयर समझ लिया कैसे स्नेयरिंग करने का। तो स्नेयरिंग का टेक्निक के बारे में आज नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है। और व्हाट शुड बी द प्रोटोकॉल इफ वी सी एन एनिमल ट्रैप्ड इन द स्नेयर नियर फ्रिंज विलेज? अर्जुन बासु, आप आपको कोई भी जानवर आपको मिल गया है जो ट्रैप में फंसा है, सबसे पहले आपको देखना चाहिए भाई कौन सा जानवर है और वो जिंदा है कि नहीं। मतलब इफ इट इज अ लेपर्ड या फिर टाइगर ऐसे कुछ होगा तो आप दूर से देख लो, और आपको लग रहा है भाई जिंदा है जानवर, आप तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास रेस्क्यू करने का अनुभव और रेस्क्यू करने का इक्विपमेंट नहीं है तो आप रेस्क्यू के लिए कभी भी कोशिश मत करिए। रेस्क्यू जो है प्रोफेशनल ट्रेन्ड बंदों को रेस्क्यू करने दो, या वेटनरी डॉक्टर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ जो रेस्क्यू कर सकते हैं, और उसके बाद ही उसके साथ ही आप रेस्क्यू कर सकते हैं। बगैर प्रिपरेशन आप रेस्क्यू करेंगे वो जानवर के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए खतरा हो सकता है। माई सजेशन, मतलब यदि आपके पास अच्छा, अवॉइड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं है। आप वहां पर खड़े होके आप डीएफओ साहब को या फिर रेंज ऑफिसर को आप फोन पे बता दें या फिर व्हाट्सएप करें, ये आपका फर्ज है। आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसमें कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। आप बता दिया उसका मतलब ये नहीं आपके खिलाफ केस हो जाएंगे, आपको बताना चाहिए, वो जरूरी है। सेफ्टी ऑफ द एनिमल लीव टू द एक्सपर्ट्स, जो भी एक्सपर्ट है उनको रेस्क्यू करने दो, आप खुद रेस्क्यू अटेम्प्ट मत करो यदि आपके पास एक्सपर्टीज नहीं। लास्ट क्वेश्चन, मगर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, डीएफओ उस पर्सन को पर्सनली पहचान दे। चलो ये पर्सनल मतलब एक्से, ये जो आपने जो डिस्कस कर रहे हैं मेरे ख्याल से हम लोग उसको 1-to-1 डिस्कस करेंगे। वो कहाँ का केस है, मैं आपको मदद जहां तक मैं कर सकता हूँ मैं आपको मदद कर दूंगा। और वैसे कुछ नहीं है कि सिस्टम इतना करप्ट है, मतलब मेरे ख्याल से हम लोग जब डिस्कस करते काफी लोग बोलते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं करते, नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करते काफी। और कुछ जगहों पे कुछ लोग का एफिशिएंसी का सवाल होता है, वो थोड़ा अलग रहता है। मगर जब आप अच्छी तरीके से, जब आप काफी इंफॉर्मेशन लेके आप अप्रोच करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑलवेज रिस्पॉन्ड। Okay, we'll go to the next one. I'm going to show you some pictures. मतलब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा और कुछ डिस्कस करते जाएंगे, और लाइव कमेंट्स में देखूंगा, लाइव कमेंट्स में कुछ आएंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा।
ओके, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ कॉमनली ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जब तक मेरे पास कोई कमेंट में कोई आंसर बताएंगे क्या है, तो तब तक हम लोग वेट करेंगे। Anybody has an answer? What is it? Okay, Ajinkya is telling sloth bear. It may not be a sloth bear. Sloth bear नहीं है, bear का paw है, मतलब bear का पैर है। और जो bear paw जो है, ये चाइना में लोग bear paw सूप के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ से ब्लैक बेयर और स्लॉथ बेयर दोनों का हंटिंग होता है, और इसका बेयर का जो पो जो है वो यहाँ से ले जाता है चीन में, और नेपाल के तरफ से और नॉर्थ ईस्ट के तरफ से इसको इस चीज को ले जाते हैं। और ये जो आपके स्क्रीन पे दूसरा एक चीज है, जो भी पहचान सकते हैं आप बता सकते हैं क्या है। ओके, ये भी बेयर प्रोडक्ट है, बेयर बाइल है। फोटोग्राफ मैंने उत्तरांचल से लिया था, और ये जो है ट्रेडिशनली जब भालू मरा हुआ भालू मिलते हैं, काफी स्थानीय लोग बेर का गॉल ब्लाडर जो है उसको निकाल के रख देते हैं। लोगों का मानना है इसको ये जो चीज है, ये पीलिया जॉन्डिस जॉन्डिस और फीवर और ऐसे बहुत सारे चीजों में इसका इस्तेमाल होते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी इसका बहुत इस्तेमाल होते हैं। लोगों का ये जो पहाड़ी इलाकों में इसका यूज करना काफी कॉमन है। तो लोग इसको उसका जो पित्त का जो थैला है उसके साथ साथ इसको ड्राई करके अपने घरों में रखते हैं। और ये है अपना बेयर कब्स, ये स्लॉथ बेयर कब्स है। स्लॉथ बेयर कब्स का ट्रेड जो है बेयर डांसिंग के लिए काफी होता था। अभी आज के तारीख में बेयर डांसिंग काफी कम हो चुका है, तो स्लॉथ बेयर कब्स का ट्रेड भी काफी कम हो रहा है। उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये सब जगहों से स्लॉथ बेयर का कब्स का तस्करी काफी होता था, और वहां से ये जो बेयर कब्स है कलंदस ले आते थे। कलंदस ले आके अपने पास रखे, 1-1.5 साल तक अपने पास रखते, फिर नचाने के लिए बाहर रोड पे, आप कुछ लोगों ने देखा होगा कुछ साल पहले तक दिल्ली, आगरा, जयपुर हाईवे में आपको डांसिंग बेयर्स दिखते थे, वो आजकल नहीं दिखाई दे रहा है। और ये ट्रेंड काफी होता था। ये स्लॉथ बेयर का एक पिक्चर है जिसका दांत नहीं आप देख सकते हैं। जो बेयर डांसर है उसने उसका दांत निकाल दिया है और उसको चेन बांध के अपने पास रखा है। और लाइव बर्ड ट्रेड, कुछ 1-2 कमेंट्स पहले आए थे जो लाइव एनिमल और एक्वेरियम और पेट शॉप्स के जो ट्रेड्स हैं। लाइव बर्ड ट्रेड आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, और इंटरनेट, फेसबुक, मतलब इंटरनेट, व्हाट्सएप, ये सब जो चैनल्स है, ये सब जगहों पे लाइव बर्ड्स का काफी ट्रेड चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके हिसाब से इंडिया में कोई भी वाइल्ड बर्ड्स, मतलब जो बर्ड्स जो वाइल्ड में पाए जाते हैं, इसमें कोई भी बर्ड्स को आप अपने पास रख नहीं सकते हैं। मतलब अलेक्जेंड्रियन, यहाँ पर जो पैराकीट है, ये पैराकीट आप रख नहीं सकते, शेड्यूल 3 में आते हैं, और इसको रखना इट्स अ क्राइम। आउल्स इन ट्रेड, आउल्स मतलब अभी ये जो दिख रहा है बान आउल है, काफी इंडिया में काफी जगहों पे ये एक चीज मानता है, कुछ लोग मानते हैं भाई दिवाली के टाइम पे आप उल्लू को ले आके उसका बलि चढ़ाएगा तो लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आए हैं भाई, आप लक्ष्मी जी का जो वाहन है, आप उसी को आप कत्ल करोगे और उसका बलि चढ़ाओगे, और आपके घर में लक्ष्मी जी कैसे बसे। और ये दिवाली और दिवाली के आसपास का जो टाइम है, वहां पर उसी टाइम में काफी जो आउल्स का ट्रेड नॉर्थ इंडिया में काफी चलता है।
और काफी प्राइस भी बढ़ जाता है उसी टाइम में, मतलब बार्न आउल्स है और फिर इंडियन हॉर्न्ड आउल है और छोटे बहुत आउलेट्स भी इस ट्रेड में आ जाते हैं। और इसका जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है तांत्रिक विधि में और ये सब का, ये सभी पूजा वो सब में यूज होता है। आप जरूर सोचिए, ये जो एक जानवर को आप बलि चढ़ाने से कोई भी देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। और यदि पुलिस वाले को, फॉरेस्ट वाले को पता चल जाएगा तो मेरे ख्याल से आपको लक्ष्मी जी के अलावा आपको पुलिस वालों के दर्शन होंगे और फॉरेस्ट वालों के दर्शन होंगे। और अरेस्ट होना और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर के केस का डील करना थोड़ा महंगा हो जाता है। ओके, कैन एनीबॉडी आइडेंटिफाई द एनिमल? कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कौन सा जानवर का स्किन है? मैं वेट करता हूं। क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड? ओके, clouded leopard. I think most of you are answering clouded leopard. Yes, that is correct. It is clouded leopard. It's not a snow leopard. Snow leopard is not perfectly white. Snow leopard is dirty white with a lot of patterns on the body. But this is a clouded leopard. Found in this clouded leopard is found in northeast के हिस्सों में मिलता है। लोकल हंटर्स इसको हंट करते हैं और इसका जो स्किन जो है वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं इंडिया से। मोस्टली चाइनीज और नेपोलिस बायर्स जो है वो लोग क्लाउडेड लेपर्ड का स्किन यूज करते हैं। ये जो फोटोग्राफ मेरे ख्याल से भूटान में लिया गया था, भूटानीज अथॉरिटीज के पास कुछ सीज किया हुआ स्किन था। पैटर्न्स आप देख लीजिए कितना खूबसूरत है। यही खूबसूरती उसका प्रॉब्लम था, क्योंकि एक जमाने में लोग ये मानते थे भाई जानवर का जो खाल है उसको लेके बेल्ट या फिर हेड गियर या बैग्स या रैप्स कुछ बनाएंगे, वो अपना शान और शौर्य दिखाएंगे। इस वजह से लोग इसका यूज करते हैं। चलो लेट्स गेट इनटू एलिफेंट। बहुत सारे प्रॉब्लम होता है एलिफेंट ट्रेड, एलिफेंट्स में। एक तो लाइव एनिमल का ट्रेड है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हाथी जो है, थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का भी डिस्कशन करता। अभी आपके सामने जो हाथी जो है ये हम लोग बोलते हैं पालतू हाथी है। आज पर तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, इसको बताते हैं कैप्टिव वाइल्ड लाइफ। मतलब आपका जो वाइल्ड एनिमल है आप उसको जब अपने कब्जे में रखते हैं उसको कैप्टिव एनिमल माना जाता है। मतलब यहाँ पर आपके सामने जो हाथी है वो कैप्टिव वाइल्ड लाइफ है, कैप्टिव एनिमल है। और इसको रखने के लिए मतलब आपके पास कोई भी वाइल्ड एनिमल को रखने के लिए आपके पास परमिशन होना चाहिए, और ये जो परमिशन है आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से मिलते हैं। और ये भी नहीं है आपके पास यदि ये हाथी है और हाथी मर गया अचानक तो इसका जो दांत है आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। मतलब एक एलिफेंट जो है, अभी इसका जो ऑनर, मतलब ये हाथी, मान लीजिए हाथी मर गया तो इसका जो दांत जो है ये दांत अपने पास रखने का परमिशन मिलता है अपना ऑनर के पास। वो जो ऑनर है वो कभी इसको बेच नहीं सकते हैं। काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है भाई मेरे पास एक ऑनरशिप सर्टिफिकेट है, तो ऑनरशिप सर्टिफिकेट है उस वजह से मैं उसको बेच सकता हूँ कि ऑनरशिप सर्टिफिकेट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है कोई भी जानवर को रखने के लिए या कोई वाइल्ड लाइफ आर्टिकल को रखने के लिए, वो सिर्फ आपके पास एक कस्टोडियनशिप है। आप कोई भी वाइल्ड एनिमल को, आपके पास जो वाइल्ड एनिमल है आज के तारीख में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आप इस वाइल्ड एनिमल को किसी को बेच नहीं सकते हैं। मतलब ये जो हाथी यहाँ पर जो है, ये हाथी जो है इसका मालिक किसी और को उसको बेच नहीं सकते। ये मर जाएगा, इसका जो दांत जो है ये फॉरेस्ट वाले आएंगे, इस पे सील करेंगे और ऑनर को वापस देंगे सुप्रधारी के लिए, अपने पास रखने के लिए, बेच नहीं सकते। तो दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम पीयूष शेखसरिया। पीयूष एक बड़े अच्छे दोस्त है और पीयूष पूछ रहा है, आर ऑल कैप्टिव एलिफेंट्स लाइक कैंप एलिफेंट्स और टेंपल एलिफेंट्स इन द सेम कैटेगरी? यस पीयूष, वाइल्ड एनिमल को जब आप कैप्टिविटी में ले आते हैं उसको कैप्टिव एनिमल माना जाता है
और उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, मतलब मान लीजिए एलिफेंट जो है हमारा शेड्यूल 1 एनिमल है, शेड्यूल 1 एनिमल जब आप कैप्टिविटी में भी ले आता है उसका शेड्यूल 1, इट इज अ शेड्यूल 1 एनिमल ओनली, मतलब वो कैप्टिविटी में आता है, उसका कोई भी प्रोटेक्शन में उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं होते हैं, इट इज a captive animal, it is a camp elephant or temple elephant, everything is in the same category. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंप में भी जो एलिफेंट यूज होता है उसको भी कैप्टिव एलिफेंट माना जाता है और उसको सेम कैटेगरी में से प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू पीयूष। और आपका स्क्रीन में आप देख सकते हैं हाथी दांत। हाथी दांत का व्यापार जो है इंडिया में काफी चल रहा है और कुछ टाइम पे हम लोग सोच रहे थे ये जो ट्रेड है काफी कम हो चुका है, मगर नहीं है। ये जो फोटोग्राफ है ये मेरा थोड़ा पर्सनल कनेक्शन है फोटो के साथ। ये फोटो लिया था दिल्ली में एक स्लम एरिया में एक छोटी सी घर के अंदर। सिर्फ इतना नहीं था, मेरे ख्याल से वहां पर करीबन 500 किलो हाथी दांत था। और इसका जो ओरिजिन है, ये जो हाथी दांत का ये ओरिजिन जो है वो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु से था, अलग अलग जगहों से। और ये जो हाथी दांत दिल्ली में इसलिए लाया गया था क्योंकि दिल्ली में कुछ व्यापारी बैठे थे जो हाथी दांत की मूर्ति बनाते थे और बेचते थे। और आप यहाँ पर कुछ जनरल नॉलेज भी आपको देता हूँ। ये जो नीचे जो बड़ा जो हाथी दांत आपको दिख रहा है सफेद जो है वो कैप्टिव एलिफेंट का है। और वो इसलिए पता चल जाता है भाई ये जो लेफ्ट साइड में जो ऊपर जो है वो वाइल्ड एलिफेंट का है, क्योंकि वाइल्ड एलिफेंट का जो दांत है उसमें काफी क्रैक्स और वो इतना साफ नहीं दिखते। और जो टिप्स जो दिख रहा है, जो सफेद जो टिप्स है, कैप्टिव एलिफेंट का जो टिप जो टस्क जो है उसको हर साल में थोड़ा थोड़ा ये लोग काटते हैं। जो महावत है और ऑनर्स है उसको थोड़ा काटते हैं और काटने के टाइम पे जो आइवरी मिलता है वो बेच देते हैं। और इसी आइवरी को लेके हमारा जो आइवरी ट्रेड जो है वो काफी चल रहा है। ओके, आई हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम भार्गव। Are all these laws apply to domestic animals like dogs and cats? No. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी एनिमल लिस्टेड है सिर्फ उसी एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। डॉग्स, कैट्स, काउस, चिकन, एवरीथिंग कम्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल्स। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू दैम। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, सर एलिफेंट्स में माइक्रोचिप है नहीं, वो कैसे मालूम हो करें? एलिफेंट्स में कुछ स्टेट्स में माइक्रोचिप्स कंपलसरी कर लिया है। माइक्रोचिप रीडर है, माइक्रोचिप रीडर लेके आप माइक्रोचिप का पता कर सकते हैं। और जैसे केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सब स्टेट में तो बहुत कंपलसरी, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है। हाथी के ऊपर यदि माइक्रोचिप नहीं है तो उसको इलीगल एलिफेंट मान के उसको कॉन्फिस्केट करते हैं। ये आपके स्क्रीन में आपको कोई लोग ऐसे मत सोचना भाई अच्छा क्या नजारा है, कुछ नहीं है। ये अफ्रीकन एलिफेंट का आइवरी है और कुछ देखने से कुछ अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसका जितना भी ऑनर्स था एलिफेंट उस सबको मारा गया था। और ये जो शिपमेंट है श्रीलंका में पकड़ा गया था, मतलब अफ्रीका से आइवरी जा रहा था चीन और बीच में जो कंटेनर है श्रीलंका में आ गया था। श्रीलंकन कस्टम्स को कुछ डाउट हो गया था, उन लोगों ने आइवरी मतलब कंटेनर एग्जामिन किया, उनको इतने सारे नहीं काफी आइवरी थे, करीबन 1500 किलो के ऊपर आइवरी था, वो सीज किया था। एक्चुअल आइवरी, काफी लोग पूछते हैं आइवरी कैसे पहचानते? आइवरी का जो पीछे का जो एरिया है, आप मत सोचना आइवरी पूरे के पूरा एक सॉलिड चीज है। आइवरी का जो पीछे जो है आपका दांत जैसा जो है उसका हॉलो एरिया है। और ये जो आइवरी है ये उड़ीसा में कोई पोचर के पास से बरामद हुआ था, आप देख सकते हैं आइवरी। और बस दैट इज जस्ट फॉर सिंपल आइडेंटिफिकेशन। और बिग कैट स्किन्स, लेपर्ड्स, लेपर्ड स्किन का जो ट्रेड है, मेरा अनुमान है, मेरा ओपिनियन है आज के तारीख में ये इस तरीके का जो ऑर्गेनाइज्ड हंटिंग लेपर्ड्स के लिए थोड़ा सा कम हो चुका है, मगर कुछ जगहों पे अभी भी चल रहा है। ये जो 4 सज्जन आपको जो दिख रहा है, चारों नेपाली है और 7 मेरे ख्याल से 7 लेपर्ड स्किन्स हैं। और ये 2007 का इंसिडेंट है और इन लोगों को अरेस्ट किया था नेपाल से, मगर जो लेपर्ड्स जो है वो हमारा इंडियन है, मतलब इसमें लिखा तो है ही नहीं वो इंडियन लेपर्ड है, कोई सिटीजनशिप नहीं है। मगर ये हुआ था नेपाली जो बायर्स है हमारा इंडियन पोचर्स के साथ मिलकर हमारा इंडिया में पोचिंग किया और जो स्किन्स जो है इंडिया से नेपाल ले गया
तो कुछ इन्फॉर्मेशन आया था, हमने किसी एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्फॉर्मेशन दे दिया था, उन्होंने अरेस्ट भी किया था। आप देख सकते हैं कितना लंबा लेपर्ड स्किन्स है। तो लेपर्ड स्किन्स जो है मोस्टली उसका जो डेस्टिनेशन जो है चाइना और साउथ एशियन कंट्री सारे। काफी क्वेश्चन है, एक सेकेंड। एलिफेंट्स और माइक्रोचिप, अगर चिप नहीं हो तो फिर भी उसका यूज होता है। भाविन, यदि चिप नहीं है और उसका यूज होता है तो आप रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं लोकल डिपार्टमेंट को जहां पर माइक्रोचिप नहीं है एलिफेंट के ऊपर और उसका यूज होता है। इट कैन बी अरेस्टेड एंड कॉन्फिस्केटेड। Okay, Debo is another good friend from WTI. What is the status of wild elephant meat being consumed in India? Is it being sold illegally? Yes, Debo. नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगहों पे एलिफेंट मीट का कंजम्पशन चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है। मैंने ये भी देखा है केरला और कर्नाटक और तमिलनाडु का कुछ पोचर्स ने भी एलिफेंट्स को मारा, यंग एलिफेंट्स को मारा है और उसका जो मीट है निकाल के गौर मीट बना के बेच दिया था। मतलब वाइल्ड मीट में मिक्स करके बेचते हैं। और मतलब आप जो खरीदते हैं उसको आप शायद नहीं बताते हैं ये एलिफेंट का मीट है, आप शायद बताते हैं ये जंगली सुअर का मीट है या फिर जंगली भैंसे का मीट है करके बेचते हैं। और yes, there is a consumption, there is a practice of consuming elephant meat. Largely it is there in northeast, but I have seen it in other parts of the country also. Okay, leopard skin, trapped leopard। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेपर्ड है, ये जो लाइव फोटो, ये फोटोग्राफ कर्नाटक से है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेपर्ड जो है उसको वो ट्रैप में फंसा है। और जब आप इस तरीके का ट्रैप जब देखते हैं तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, भाई ये जो ट्रैपिंग किया है ये प्रोफेशनल बंदों ने किया है। इस तरीके का जो लेग ट्रैप्स है, आप में काफी लोग जो है देखा होगा या सुना होगा, पारदी और बावरिया टाइप का जो ट्राइब्स है उन लोग हंटिंग जब करते हैं उन लोग इसी टाइप का लेग ट्रैप्स यूज करते हैं। और ये लेग ट्रैप्स बहुत डेडली है और जो जानवर जो रास्ते पे चलते हैं उस जगहों पे इन लोग ट्रैप लगाते हैं और जानवर फंसते हैं और उसको इन लोग मार के चमड़ी निकाल देते हैं। और जो हमारा लेपर्ड और ऑटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी एक फोटोग्राफ है, तिब्बत से लिया था कुछ साल पहले और वो फोटोग्राफ मेरे साथ शेयर किया था। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ऑटर स्किन देख सकते हैं, आप लेपर्ड स्किन देख सकते हैं। मतलब हमारा जो जंगली जानवर जो है इनको ले जाते हैं और उसको उसे कारपेट और रैप करने के लिए जो कपड़े जो है वो बनाते हैं। इसके पीछे भी कुछ हिस्ट्री है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि तिब्बत और ये जो इलाके यहाँ पर जो एनिमल स्किन्स जो यूज करते हैं वो बर्फीला इलाका है, ठंड काफी है। तो पुराना जमाने में लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था भाई, जब ठंड के टाइम पे उनके पास अभी जो आपके पास जो क्या बोलता है जो जैकेट्स जो मिलता है वो उसी टाइम में मेरे ख्याल से डेकाथलॉन वगैरह नहीं था, आप जैकेट नहीं खरीद सकते था। तो उसी जमाने में आपके पास ठंड से बचने के लिए आपके पास सबसे अच्छा उपाय था, आप एक जानवर का चमड़े से एक जैकेट बना वो पहन लो और उसके अंदर थोड़ा आप जो वूल वगैरह डाल दो, आप एकदम वार्म रहेंगे। जो कम्युनिटी में जो रिच बंदे हैं, रिच जो अपना रिचनेस कैसे बताएंगे, मतलब पुराना जमाना था, वो आज के तारीख में होगा तो भाई आप एक मर्सिडीज बेंज खरीदेंगे या फिर आप लैंड रोवर खरीदेंगे। पुराने जमाने में वहां पर अपना जो जो वेल्थ जो है आप दिखाएंगे आपका ऑर्नामेंट से। मतलब आप एक टाइगर का खाल से एक कपड़े बना के पहनते हैं तो मतलब लोग समझ जाते हैं भाई अच्छा ये घर का अच्छे घर के आदमी है, मतलब इसके पास पैसा है, मालदार पार्टी है। और आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप तेंदुए के खाल पहनेंगे, और यदि वो भी नहीं है तो फिर आप जो आम जानवर जो है शीप गाय भाई उस चीजों को इस तरीके के जानवरों के चमड़े पहनेंगे। मतलब एक लोगों का एक दिखाने का एक तरीका था भाई मेरे पास पैसा है। मतलब आप मान लीजिए तिब्बत में एक आदमी को इस चीज को चूबा बोलता था, इससे जो कपड़े बनते हैं उसको पहनने में उसी टाइम में उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए। तो एक ट्रेडिशनली वो अपना दिखाने के लिए ये चीज यूज करता था। एक अच्छी बात है, कुछ साल पहले जो तिब्बतन्स का जो रिलीजियस लीडर है हिज हॉलीनेस दलाई लामा ने अपना लोगों को बता दिया भाई आप ये जो है जानवरों का चमड़े से आप कपड़े मत पहन लीजिए और जो भी आपके पास रखा है आप उसको जला दीजिए। अब मानोगे नहीं,
काफी लोगों ने, मतलब काफी लोगों ने अपने पास जो मटेरियल था वो बाहर सड़क पे ले आए और सड़क पे ले आके उसको जला दिया, और उसके बाद ये जो ट्रेडिशन है वो थोड़ा कम हो गया। अच्छा, तिब्बत से हम लोग सीधा सीधा इंडिया में आते हैं, और मेरे ख्याल से आप में से काफी काफी लोग अभी उसको पहचान लिया है भाई, ये चीज क्या है। आप बता सकते हैं क्या है? थोड़ा लाइव कमेंट्स दे दीजिए। जो ब्रश जो है आपके स्क्रीन में, जो ब्रश दिख रहा है वो किस चीज से बना हुआ है, कुछ बता सकते हैं कोई? ऋषि पाठक इज टेलिंग मंगूस हेयर ब्रश। अच्छा ऋषि, आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपको काफी चीज पता है। ठीक है, मंगूस, यस। तो मंगूस का जो ब्रश, मंगूस हेयर से जो ब्रश बनता है वो आज के तारीख में भी यूज होता है। ये जो फोटोग्राफ जो सबसे नीचे जो बंडल है, ये बंडल नवंबर महीने में यूपी में लिया गया था फोटोग्राफ से। इंडिया में मंगूस हेयर ब्रश का, इंडिया में नहीं काफी बाहर भी, ये मेरे ख्याल से आप लॉकडाउन के टाइम पे आप ये देख सकते हैं। तो 2 दिन पहले मैंने एक अपना रिलेटिव्स के घर पे गया था, तो वहां पे कुछ कुछ दिन पहले कुछ पेंटिंग हो रहा था और कुछ ब्रश वहां पे छोड़े थे, और मैंने वो 2-4 ब्रश निकाल के देखो, उसमें भी 2 मंगूस ब्रश मुझे मिले हैं। मतलब लोग अभी भी इसको यूज करते हैं। एक सेकेंड, हेलो। तो ये जो मंगूस हेयर ब्रश जो है, मंगूस हेयर आज के तारीख में भी लोग यूज करते हैं, और काफी इसका व्यापार चलते हैं। और मंगूस हेयर ब्रश जो है सबसे ज्यादा इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है यूपी और कलकत्ता में, और वहां से इसका जो ट्रेड जो है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहा है ऑल ओवर इंडिया। मतलब सिर्फ एक जगह पे नहीं, काफी जगहों पे इसका ट्रेड चल रहा है। और आर्टिस्ट लोगों का एक मानना है भाई, मंगूस हेयर इज मच बेटर देन मेनी अदर हेयर। मतलब ये नेचुरल कलर्स, सॉरी वाटर कलर और ऑयल कलर दोनों में इसका ज्यादा बहुत इस्तेमाल होते हैं, और एक्सपोर्ट भी हो जाता है इंडिया से काफी बाहर। एनी क्वेश्चन अबाउट मंगूस हेयर? Okay. I'm just answering 1 or 2 questions. सर्कस में एलिफेंट्स परफॉर्मेंस में यूज करना सही है? बिल्कुल मना है। हाउ ऑफन जेनेटिक एनालिसिस इज डन फॉर दीज प्रोडक्ट्स? Malaika, Malaika, I think that question is regarding the mongoose hair brush and other things. Most of the time, these products get a genetic analysis to find out whether this hair is from a particular species of animal. That is very important to file a case. You cannot file a case, or you cannot book a case under the Wildlife Protection Act and take it to the court and win convictions for the accused if you just write that it is mongoose hair, because it can be contested in the court very much. So each time when a set of when a recovery happens, a sample is taken and it is genetically analyzed, and a certificate from the authority is attached to ensure that the authenticity of the product is not contested much in the court. Okay. Alternatives, there are already a lot of मतलब mongoose hair का alternatives क्या है? There are already a lot of synthetic hair available which looks like mongoose hair, and that is the best alternative. But you cannot say that you don't have an alternate and you will use only mongoose hair.
And if you use mongoose hair, let me warn you, you will be in serious trouble, because mongoose is protected under Schedule 2, Part 2 of the Wildlife Protection Act. Possession of mongoose hair brush, even one single brush, यदि आपके पास एक भी ब्रश है तो आपको 3 साल तक की सजा मतलब कम से कम आपको 3 साल की सजा मिल सकते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है भाई आपके पास 10 ब्रश होना चाहिए कि 15 ब्रश होना चाहिए। यदि आपके पास एक भी ब्रश हो, आपको जब अरेस्ट करेंगे तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बुकिंग करेंगे, सो बी केयरफुल। So many questions. How can we identify it's an animal hair? Okay, animal hair आप कैसे पता कर सकते हैं? यदि आपको डाउट है तो आप सबसे पहले देख लीजिए, मंगूस हेयर जो है उसका एक पैटर्न है, सॉल्ट एंड पेपर पैटर्न है। आप उसको एक स्ट्रैंड आप निकाल के देखोगे, ब्लैक व्हाइट आपको दिखेगा। और सबसे इजी तरीका है, आप थोड़ा सा हेयर निकाल के, 3-4 हेयर निकाल के उसको जला दीजिए। आर्टिफिशियल हेयर होगा, मतलब सिंथेटिक हेयर होगा, वो जलेगा तो प्लास्टिक जब जलते है उसका जो बदबू आता है उसी तरीके बदबू आएगा। और नेचुरल हेयर है, मंगूस हेयर है, तो आपको ह्यूमन हेयर या केराटिन जब स्मेल बर्न होते हैं, it will smell like the same. I mean, you can sense the very distinguishing foul smell of burning hair. So that is the best way to understand whether it is plastic or natural hair. मंगूस शेड्यूल एनिमल हो तो गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है? गवर्नमेंट एक्शन लेते हैं, काफी सीजर हुआ था। इफ यू लुक एट लास्ट ईयर, इंडिया में काफी, मतलब कई स्टेट्स में मंगूस हेयर के ऊपर कार्रवाई हुआ था। करीबन 60-70 लोगों का अरेस्ट हुआ था। और काफी शॉप्स, मतलब मुंबई, पुणे, कोलकाता और यूपी, बहुत सारे जगहों पे सीजर्स भी हुआ था। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एक्शन ले रहे हैं। Any particular species of mongoose is used, or all species? Not. There is, I mean, the large Indian mongoose is the most commonly used one, and even the small Indian mongoose is used. It depends on the source from where the hair is coming. Largely, the hair is coming from central Indian states and from Karnataka and Andhra Pradesh. So it depends what species is available there. और ये जो ब्रश जो है उसका भी अलग अलग टाइप का ब्रश होता है, तो ब्रश के हिसाब से भी हेयर का सिलेक्शन अलग हो जाते हैं। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। कैन एनीवन recognize this product? आप ऐसे कोई आइडेंटिफाई कर सकते हैं? I will wait for the first identification. No. Uday Shivam is telling Hatha Jodi. Okay, that name is correct. But what is it? Okay, monitor lizard. एक्चुअली ये जो हत्ता जोड़ी है, ये हमारा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का टीम का थोड़ा हिस्ट्री है इसके साथ। ये हमारे पास सबसे पहले आया था, कोई इन्फॉर्मर फील्ड से इसको खरीद के ले आया और हमको दिखाया भाई ये एक वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट है। मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं और मेरा एक फ्रेंड था शर्मा जी, हमने काफी देखा, आधा घंटा 1 घंटा पूरा एग्जामिन किया, हमको पता नहीं चला भाई ये प्रोडक्ट क्या है। और ये कुछ 3-4 साल पहले का बात है। और फिर जो उन्होंने हमको बताया भाई इस तरीके का इसको बनता है, और ये हत्ता जोड़ी है, ये मॉनिटर लिजर्ड का पेनिस है, और इसको ड्राई करते हैं, उसके बाद इसको हत्ता जोड़ी बनाते हैं। फिर हमने कुछ अंडरकवर स्टडी किया, तो मैं थोड़ा सा उसका फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये हत्ता जोड़ी है, पूरा हाथ भर के हत्ता जोड़ी, कोई ट्रेडर से मिला था। और हत्ता जोड़ी के पीछे का जो सच है ये है, आपके स्क्रीन में है, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा आपको देखने में, मगर
वाइल्ड लाइफ क्राइम में कुछ चीज ऐसे है, आपको देखना तो चाहिए, तभी आपको पता चलेगा भाई ये कितना खराब है, इसके पीछे का कहानी। मॉनिटर लिजर्ड जो है, मॉनिटर लिजर्ड जो है वो अपना शेड्यूल 1 का एनिमल है। मतलब मॉनिटर लिजर्ड का जो प्रोटेक्शन है, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड और राइनो, मतलब ये सब के साथ साथ है। मॉनिटर लिजर्ड दुर्लभ है और उसको शेड्यूल 1 में इसलिए डाल दिया है भाई, उसका ट्रेड भी और उसका व्यापार भी ज्यादा होता है। और इस मॉनिटर लिजर्ड को पकड़ के उसका लिंक जो है वो निकालते हैं और उसको ड्राई करते हैं। ये आप देख लीजिए, आपके सामने एक पोचर का हाथ है जो मॉनिटर लिजर्ड को मारते थे और उसका जो हथौड़ी निकाल के वो बेचते हैं। और जो पोचर जो है उसको एक मॉनिटर, एक हथौड़ी के लिए 20 रुपए 25 रुपए में बेचते हैं। और आपका जो ऑनलाइन बेचने वाले उसको 3,000 4,000 रुपए में बेचते हैं। मेरे ख्याल से आज के तारीख में आपको हथौड़ी मिलना थोड़ा मुश्किल है ऑनलाइन। हमने उसी टाइम में हमने करीबन 80-90 वेबसाइट्स को एनालिसिस किया था। आपका फ्लिपकार्ट और अमेजोन और शॉप क्लूज, पता नहीं हर एक वेबसाइट में लोग बेचते थे। और इसमें ये लिखा जाता था भाई ये कहाँ हिमालय से मिलते थे, कुछ लोग बोलते थे ये जड़ी बूटी है भाई, ये सेंट्रल इंडिया का कोई जंगल से मिलते हैं, बहुत सारे कहानी बताते थे। बट कोई कहानी सच नहीं है। हथौड़ी जो है मॉनिटर लिजर्ड का लिंग है और उसको ड्राई करके अपने पास रखते हैं और लोग मंत्र पढ़ के उसको अपने तिजोरी में रखते हैं, डब्बे के अंदर सिंदूर डाल के, और बताते हैं भाई इसको रखने से आप केस से बच सकता है और आपके पास पैसा मिलेगा और आप कोर्ट कचहरी का जो व्यवहार है आप उसमें जीत जाओगे। मतलब पता नहीं, मॉनिटर लिजर्ड को मेरे ख्याल से सब पता नहीं था, बाकी लोगों को पता है और लोग खरीदते भी है। और सिर्फ इंडियंस नहीं है, हमने उसी टाइम में देखा था लोग कनाडा, यूके, यूएस, पता नहीं कहाँ, पूरा दुनिया भर से लोग इसको खरीद भी रहे थे और अपने पास रखते थे, सोचते थे भाई ये इससे कोई चमत्कार होगा। आप बिल्कुल मत मानना, इससे कोई चमत्कार नहीं होता है और इससे जो भी हो सकता है तो नुकसान हो सकता है। और यदि इसको भी लेके आप पकड़ा जाएंगे तो आप कम से कम 3 साल अंदर रहोगे। और कुछ लोग जो है हथौड़ी जो बेचते थे उसको पूछ लेना आप, उसके पास क्या तकलीफ है हथौड़ी बेचने के बाद। जैकल स्किन्स, हमारा टाइम थोड़ा आगे बढ़ रहा है, मैं और 15 मिनट मेरे ख्याल से ले लूंगा। जैकल स्किन्स ये कुछ ट्राइब से साउथ इंडिया का नरिकुरुआस बोलते हैं, उनका एक ट्रेडिशनल काम है भाई जैकल्स को मारना। काफी रिसर्चर्स ने ये कंप्लेन दिया भाई जैकल्स आजकल गायब हो रहा है। नरिकुरुआस जो है वो जैकल्स को इसलिए मारते हैं, एक तो उसका मीट खाते हैं, दूसरा इसका स्किन जो है कुछ तांत्रिक विधि में यूज करते हैं। केरल के लोग, कुछ टाइप के लोग मानते हैं भाई जैकल स्किन जो है वो घर के अंदर रखेगा तो उससे भूत प्रेत सब बाहर रहेंगे। और मुझे पता नहीं इससे कैसे बाहर रहेगा, मगर लोग मानते हैं इसलिए लोग इसको मंगाते हैं और अपने पास रखते हैं। और कुछ फेक प्रोडक्ट्स और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है, क्या है कोई बता सकते हैं? इसमें कुछ फेक प्रोडक्ट्स और कुछ रियल प्रोडक्ट्स है। हाँ, कंटिन्यू, इंटरेस्टिंग है। सियाल सिंगी नहीं, सियाल सिंगी को भी लेके आजकल कुछ चर्चा हुआ था। सियाल सिंगी एक फेक प्रोडक्ट है, मतलब सियाल का कोई सिंग नहीं होता है और सियाल सिंगी भी नहीं होता है। जो ट्रेडर्स जो है वो मोस्टली जो कोई भी जानवर का चमड़ा जो है उसके अंदर एक दांत या नाखून घुसा देते हैं, फिर उसको सियाल सिंगी बताते हैं। नहीं, ये सियाल सिंगी नहीं है। इसमें जो है वो दिखा रहा है, ये कस्तूरी दिखा रहा है। इसमें ऊपर जो है तीनों, 1 2 3, मेरे ख्याल से आपको माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा होगा, ऊपर का 3 और नीचे का लेफ्ट मोस्ट जो गोल में है, ये चारों जो है फेक है। और जो लास्ट जो 2 है वो ओरिजिनल है। ये एक्चुअल मस्क डियर का मस्क पोड है। और या करेक्ट, मस्क और कस्तूरी। और टॉप लेफ्ट कॉर्नर नहीं, चारों फेक है। मतलब ऊपर का 3, नीचे का जो लेफ्ट में जो है और एक, ये चारों फेक है। और लास्ट में जो 2 है ये दोनों ओरिजिनल है। ये मस्क का पोड है और मस्क पोड का कोई स्मेल नहीं होता है।
और जो नकली मस्क पोर्ट जो बेचते हैं आपके पास, कभी आपने देखा होगा जो लेके आते हैं बेचने के लिए, वो आपको बताते हैं मस्क कस्तूरी का बहुत सुगंध होता है। ओरिजिनल कस्तूरी जो नीचे जो दोनों दिखता है उसका कोई सुगंध नहीं होता है, ऊपर जो तीनों है उसमें इन लोगों ने आर्टिफिशियल जो एजेंट्स डाले हैं, उस जैसे आपको स्मेल दिखेगा, जो नीचे वाले जो ओरिजिनल है उसमें नहीं दिखेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन anybody identify what is this? कौन से जानवर का दांत है? Can any of you identify what animal product is this? No. Tiger. Yeah, it is animal teeth, correct. Tiger, lion, okay. Go on. It is neither tiger nor lion. ये टाइगर टीथ और लायन टीथ दोनों नहीं है। ये जो बेचते हैं इसको बताते हैं भाई ये टाइगर टीथ है, एक्चुअली कैमल टीथ है, ऊंट जो है उसका दांत है। और चिंपांजी, नो 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 नो, देयर इज नो फेक कैनाइन। मतलब मैं आपको बताता हूं, फेक कैनाइन नहीं है, मतलब ये है आपका कैमल का जो है उसका दांत है, मगर इसको जब बेचता था जो ट्रेडर जो था वो बताता था भाई टाइगर का कैनेन है, बिल्कुल टाइगर कैनेन नहीं है। मैं आपको ओरिजिनल टाइगर कैनेन दिखाता हूं, और आपके सामने ये जो पिक्चर है उस ऑटर स्किन है, साइज आप देख सकते हैं। मैं आपको ये सब पिक्चर्स इसलिए दिखाता हूं, आप में से कोई भी आगे जाके ऐसे कोई वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट देखे तो आपको पता होना चाहिए भाई क्या है। ये भी ऑटर स्किन है, आप देख सकते हैं ऑटर स्किन। और ये कुछ फोटोग्राफ्स में आपको दिखाता हूं, ये पारदी बावरिया टाइप के लोग हैं। मतलब इसके बारे में मैं ज्यादा आगे नहीं जाता हूं। मतलब एक हंटिंग कम्युनिटी है और इन लोग हंटिंग के लिए जाते हैं। मतलब ये जो फोटो आप देखते हैं ये हमने कर्नाटक में कोई जंगल के पास से फोटो लिया था। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो ग्रुप जो है इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कोई अडल्ट आदमी नहीं दिख रहा है, मतलब कोई जेंट्स नहीं है इस ग्रुप में। ये लोग जो है ये हंटिंग के लिए जो मेल जो है वो जंगल के अंदर चले गए। और ये है अपना टाइगर ट्रैप में ये जो प्रेजेंटेशन जो है मैंने बहुत स्ट्रक्चरली नहीं बनाया, मैंने सोचा वेबिनार है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिखाए और आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। ये जो ट्रैप आपके सामने जो दिख रहा है, ये ट्रैप जो है ये सिग्नेटरी ट्रैप है बावरिया और पारदी। मतलब ये जो टाइगर और लेपर्ड जो प्रोफेशनली मारते हैं, इन लोग इस तरीके का ट्रैप यूज करते हैं। मतलब आप कहीं पे भी आपको इस तरीके का ट्रैप किसी के पास आपको दिखाई देता है, या फिर इसका जो स्पेयर पार्ट्स, मतलब ये जो है इसका स्प्रिंग्स है और इसका जो जॉज है ये दोनों साइड पे है, और इस तरीके का कोई स्पेयर पार्ट आपको किसी के पास दिखता है तो आपको पता होना चाहिए भाई ये एक प्रॉपर ट्रेडर मतलब टाइगर पोचर्स है। मैंने कुछ इमेजेस रैंडमली लिया था और ये जो इमेजेस है आपके सामने जो है ये है पैंगोलिन स्केल्स। आजकल पैंगोलिन काफी चर्चे में है और ये पैंगोलिन का जो स्केल जो है, कवच जो है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो फिश का जो स्केल है उस तरीके के आपको दिखेगा, करीबन 3 इंच 4 इंच तक उसका लंबाई होता है और बहुत हार्ड रहता है। और ये पैंगोलिन स्केल का क्लोजअप्स है, ये भी पैंगोलिन स्केल है। तो पैंगोलिन का स्केल मतलब पैंगोलिन का स्किन जो है वो फुल पोर्शन है। मतलब पैंगोलिन को किसी ने मार के उसका स्किन पूरा निकाल के बेचने के लिए ले जा रहा था, वो उस तरीके से दिखता है। और ये जो आपके सामने जो है वो राइनो हॉर्न है, मगर फेक है, ओरिजिनल राइनो हॉर्न नहीं है, फेक राइनो हॉर्न है। मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैं थोड़ा उस पर ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। सी हॉर्सेस इंटरेस्टिंग थिंग है क्योंकि ये साउथ मतलब इसका भी बहुत ट्रेड चलता है। वो छोटी सी चीज है, आप सामने देख सकता है क्या साइज क्या है इसका, करीबन 3 इंच या 4 इंच का साइज होता है।
और ये जो है शेड्यूल 1 का है। हमारा जो तमिलनाडु कोस्टल एरिया से इसका काफी ट्रेड होता है, ड्राइड सी हॉर्स का ट्रेड होता है यहाँ से। और जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है एनिमल्स को लेके, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भाई साहब जो है वो अपने पास सांप वगैरह रखा है, और ये जो स्नेक्स या कुछ ऐसे जानवर आप परफॉर्मेंस के लिए रखते हैं वो भी इट इज ऑल्सो इलीगल थिंग। और ये है आपका स्टार टोटोइस, जो पेट ट्रेड में काफी इसका इस्तेमाल होते हैं। और इस चीज को कीड़ा जड़ी बोलता है, कीड़ा जड़ी या यारसुगुम्बा। इसका इसका कलेक्शन जो है हमारा उत्तराखंड में ही होता है, इंडिया में। और इसका ट्रेड भी यहाँ से इंडिया से चाइना के तरफ काफी ज्यादा होता है। इंटरेस्टिंगली दिस इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ओडिसिपस, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, ओडिसिपस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं है, बट इट इज अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट इन इंडिया। आप इसको कलेक्ट करके आप बेच नहीं सकते हैं। एंड आई थिंक कमिंग टू टाइगर एंड टाइगर प्रोडक्ट्स, आप यदि वाइल्ड लाइफ क्राइम में काम करते हैं आपको ऐसे नज़ारे देखने मिलते हैं। मतलब एक पब्लिक प्लेस है, रेलवे स्टेशन, मेरे ख्याल से रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड कुछ था, और यहाँ पर एक सूटकेस जब तलाशी लिया था, और सूटकेस और किसी का शोल्डर बैग है, आप देख लीजिए शोल्डर बैग के अंदर एक आपको हड्डी दिखाई दे रहा है, और सूटकेस के अंदर बहुत सफाई से एक टाइगर स्किन फोल्ड करके रखा है। और मेरे ख्याल से मैं यहाँ से आपको कुछ टाइगर स्किन का दिखाता हूँ। फोल्डेड टाइगर स्किन, आप यदि उसको बाहर निकाल के देखते हैं तो आप टाइगर स्किन काफी टाइम में फेक और रियल टाइगर स्किन के बातें होते हैं। और मैं अभी आपको पूरे के पूरा सब चीज एक वेबिनार में नहीं समझा सकता हूँ, मगर टाइगर स्किन पहचानने में बहुत सारे चीजें हैं। एक तो टाइगर स्किन का साइड्स जो है, साइड सफेद कलर में रहता है, और दोनों साइड पे जो मार्किंग्स है वो अलग अलग रहते हैं, मतलब मिररिंग नहीं होते। कभी जब आपके पास फेक्स आते हैं तो आप देख सकते हैं भाई दोनों साइड सेम रहता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों साइड सेम दिखता है मगर सेम नहीं है। और टाइगर का जो जो कान है उसके पीछे एक व्हाइट स्पॉट है, ब्लैक कलर का जो कान है उसके पीछे व्हाइट स्पॉट है, और आंखों के साथ साथ भी, मतलब आंख के जो एरिया है वहां पे भी व्हाइट स्पॉट है। और आप स्किन टच करेगा तो भी आपको पता चलेगा भाई ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। Sorry, I think that comes with that. We come to the... ओके, यहाँ पर आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट टाइगर स्किन भी दिखा रहा हूं मैं। थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी फिनिश करना चाहता हूँ। आपका लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन में जो है ओरिजिनल टाइगर स्किन है, एक तो काफी साइज का डिफरेंस होता है। राइट हैंड साइड में जो स्किन जो है, और वो जो है फेक स्किन है। फेक स्किन एक तो आपको पूंछ से पता चले, ये जो स्किन जो है लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो स्किन है, जो अपना कोई पुलिस वाले ने बहुत मेहनत करके टाइगर स्किन पकड़ के ले आया, फिर उसको पता चला भाई टाइगर स्किन नहीं है। एक तो पूंछ का साइज देख लीजिए, टाइगर का स्किन होगा तो उसका पूंछ का साइज बहुत ज्यादा रहता है। और यहाँ पर जिसने भी टाइगर स्किन जो फेक बनाया आप देख लीजिए, उसका जो पट्टी जो है जिस तरीके से बनाया, दोनों साइड पे मिररिंग करते हैं। और आपको वो जो सफेद कलर का कान नहीं दिख रहा है, और दोनों साइड पे जो सफेद होना चाहिए वो भी नहीं दिख रहा है। देखने से आपको पता चल जाता है भाई एक फेक स्किन है। टाइगर स्किन जो है 8 फीट 9 फीट के ऊपर लंबाई हो जाता है, और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन में, बट सिंपल आइडेंटिफिकेशन टेक्निक से एक तो साइज का डिफरेंस होता है, और दूसरा यदि आपको डाउट है तो आप कोई अल्कोहल या वैसे कुछ स्पिरिट लेके थोड़ा रब करके देख लीजिए, जो राइट हैंड साइड का स्किन में जो भी पेंट जो लगा है वो बाहर निकल के आएगा, और ओरिजिनल टाइगर स्किन में वो नहीं होगा। और दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई द टाइगर स्किन। आई थॉट लेट मी शो यू हाउ डज अ टाइगर कैनाइन लुक्स। आप देख लीजिए टाइगर का कैनाइन जो है एकदम पॉइंटेड है। आप देख लीजिए पूरा, जो पहले आपको मैंने दिखाया था कैमल टीथ, टाइगर का जो टीथ है देख लीजिए एकदम पॉइंटेड रहता है और कॉनिकल शेप में रहता है, और इसका जो अंदर का हिस्सा यहां तक होता है। तो टाइगर टीथ आपको देख के पता चलना चाहिए, टाइगर टीथ एकदम शार्प रहता है और
कॉनिकल रहता है। एक डेड टाइगर है। हाँ, ये यहाँ पर थोड़ा मैं आपको जो पहले जो बताया था चूबा, तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में जो महोदय है, ये एरिया का सबसे अमीर आदमी लगता है, चश्मा पहना है, अपने हेड गियर भी बहुत अच्छे से सजा के रखा है, और पहना है अपना इंडियन टाइगर का एक स्किन पहना है पक्का। क्योंकि ये जो फोटोग्राफ है ये एनवायरमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2006 में लिया था तिब्बत में, और ये बहुत आइकॉनिक फोटो बन गया था, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर इनका कोई पब्लिक फंक्शन चल रहा है और यहाँ पर वो टाइगर स्किन पहना है। और ये देख लीजिए, हमारा जो दिल्ली में जो भी रहता है उसको पता होगा, सरोजिनी नगर मार्केट, मतलब जो भी आपका जो लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट जैसे मार्केट में टंगा गया है अपना टाइगर और लेपर्ड, और जो पब्लिक आके देखते हैं भाई ये क्या चीज है। दैट्स ऑल। आई विल एंड अप विद शातूश। ये जो महिला जो पहनी है, ये जो शॉल जो है वो शातूश से बनते हैं। सबसे महंगी शॉल होता है हमारा जो टिबेटन एंटीलोप या चीरू, उसका हेयर जो है उससे बनाते हैं। आपने सुना होगा जो जो शॉल इतना नरम होता है, जितना मुलायम होता है, जो अंगूठी से भी एक पार हो जाता है, ये जो शॉल जो है वही है। और ये रेड सैंडर्स है, और रेड सैंडर्स का भी आजकल काफी तस्करी चल रहा है इंडिया से बाहर की तरफ, और वहां भी ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। ये जो क्लॉस आपके सामने जो दिख रहा है वो फेक है, कैटल हॉर्न से बना हुआ है, और ये जो लोकली जो लोग बेचने आते हैं वो ही है, और इनके पास मोस्टली ओरिजिनल चीजें आपको नहीं मिलते हैं। और ये आपका मैंने पहले आपको दिखाया था कैमल बोन, बस ये भी फेक प्रोडक्ट है। और फेक प्रोडक्ट एक चीज होता है, आपका जो सेलर आपको जितना कन्विंसिंग करने का कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर जो सेलर है उसने मेरे ख्याल से ये कैटल होनी है या प्लास्टिक नहीं है, कैटल होन है। कैटल हॉर्न से अपना नाखून बनाया और उसके ऊपर से कुछ बाल चिपकाया और कुछ मरा हुआ जानवर का स्न्यूज उस पर अटैच कर लिया, और आपके पास ले आते जैसे कि अभी मैंने टाइगर के पंजों से निकाल के ले आए हैं। और ये फेक प्रोडक्ट है, और असली प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल फेक प्रोडक्ट है। कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है, हमारा जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज ये सब चीज को लेके अरेस्ट करते हैं, फिर आप थोड़ा मतलब काफी सिविल सोसाइटी के लोग भी काफी उनको उनके ऊपर प्रेशर करते हैं, सर आप अरेस्ट करो इसको, मतलब ये वाइल्ड एनिमल का प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम क्या होता है, आपने इसमें लिख दिया भाई ये शेर का नाखून है, फिर प्रॉब्लम आपको कोर्ट में होगा, क्योंकि कोर्ट में आपके पास शेर का नाखून नहीं है। कभी कभी ऐसे भी हुआ है, जो सामने का जो डिफेंस वकील है, डिफेंस का लॉयर, वो आपको बताएगा भाई आपने तो शेर का नाखून का सीजर किया था और आप फेक प्रोडक्ट ले आए, मतलब आपने एक्चुअली जो ओरिजिनल चीज है आपने गायब कर दिया और नकली चीज रख दी। मतलब आपको प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है यदि आप वाइल्ड लाइफ क्राइम में आते हैं। ऑल राइट, आई थिंक दैट वाज अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है, मैं बिल्कुल एक जगह पे बैठ के बिना किसी का चेहरा देके मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। चलो, और हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, काफी क्वेश्चंस आए मेरे पास। शातूश आइडेंटिफिकेशन कोई पूछ रहा है, शातूश आइडेंटिफाई करने में अभी उसके लिए आपको एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। अभी आप शातूश का जो बाल जो है, मतलब शातूश हेयर जो है, यदि आपको आइडेंटिफाई करना है तो you have to be really an expert to identify just like that. There are certain methods and certain techniques, but that goes a bit beyond the webinar. फेक वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में थोड़ा समझाओ। फेक वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में ज्यादा मैं समझाना नहीं, मतलब आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू शो यू ये सब टाइप का प्रोडक्ट्स होता है, ये सब टाइप का फेक प्रोडक्ट्स भी होता है। मतलब इट इज जस्ट अ प्रिलिमिनरी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वाइल्ड लाइफ ट्रेड। गुजरात में नोबडी इज इंटरेस्टेड इन शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। ये गुजरात में नहीं, हर जगह पे ही प्रॉब्लम होता है।
जब क्राइम जब होता है, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, राइनो क्राइम में लोग बोलते हैं हाँ हाँ बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, बट व्हेन इट कम्स टू लोअर शेड्यूल्स, यस देयर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बोलते हैं करिश्मेटिक और नॉन करिश्मेटिक स्पीशीज, और क्या बोलते हैं लेसर नॉन स्पीशीज. लेसर नॉन स्पीशीज का ट्रेड में जो है काफी इंटरेस्ट कम है, और इवन शेड्यूल का भी नहीं है. आप में से कितने लोगों को पता है अजगर और टाइगर एक ही शेड्यूल में है, या फिर टाइगर और मॉनिटर लिजर्ड एक ही शेड्यूल में है? सजा एक ही है, मतलब शेड्यूल का पोजीशनिंग अलग है, मतलब शेड्यूल 1 में है, सजा एक ही है. और मगर टाइगर का या फिर लायन का जब शिकार होता है उसमें बहुत ज्यादा शोर मचता है, मगर मॉनिटर लिजर्ड का जब कत्ल होता है या फिर एक पाइथन का शिकार होता है उसमें लोग इतना नहीं सोचते. मतलब ये हमारा माइंडसेट का प्रॉब्लम है. भाविन, सर्कस में तो एलिफेंट्स है. आप you have to complain to the local forest department in writing. That's all I can say right now. So I cannot give you a complete guidance on that. मतलब आप वहां पर आपका local forest department के साथ आप complain in writing, you have to give the complaint, then there will be action. Bhargav, you are doing in wildlife biology, interested in working on this field. Can you please guide? Bhargav, why don't you write to us? My email ID is jos@of wti.org.in. Write to me in my email. We'll discuss this. I could not understand what is Ajay's question. Wildlife trade पर अरेस्ट कर सकते हैं? I could not understand that question. Rishi, I think you can come online. We overshot by about 20 minutes now. No, I can take yes, more sir, questions if anybody wants to have question. if anybody want to ask any question, else we can also discuss on Protection Act if you don't mind. Well, Wildlife Protection Act is going to be a very complicated subject, but if anybody is going to ask me a question, then I can talk about Wildlife Protection Act. But otherwise, I try to cover a few things. मतलब आप में से किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, मुझे जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. मतलब यदि हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक वेबिनार में सिखाने का कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता है. अगर आप कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आप कुछ पूछना चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा बहुत मदद कर सकता हूँ. Sudha, there is somebody asking authenticity on this. No, Sudha, I don't think that is my area of expertise. We try to deal with wildlife related things, not with domestic animal things. That you have to go for a food lab or something. Copperhead, yes, we can have a separate webinar on Wildlife Protection Act. Yeah, I don't mind. I would like to do that. Depends how you guys will discuss. I mean, it's about having a good discussion. Okay. Can we separate webinar Wildlife Protection Act? Okay. Class 1 officers, IPS, ISS, MLA, जिसे कोई powerful person wildlife को pet रख. No. Akshay, there is no option for anybody under the Wildlife Protection Act. Nobody can keep a wild animal as a pet, whether he is an MLA or MP or IPS or IAS. The Wildlife Protection Act clearly defines that a person can keep a wild animal only if he has a permission from the Chief Wildlife Warden, and that also in writing. And इन प्रैक्टिकल आज के तारीख में आपको वाइल्ड एनिमल को पेट्स तरीके आपके प्राइवेट कस्टडी में रखने के लिए आपको कोई भी परमिशन नहीं मिलता है.
Bhargav, can you please suggest any good reference book on any reading material to understand more? Bhargav, there are a couple of books on wildlife crime which you can buy online. There is a book written by Vivek Menon and Ashok Kumar on wildlife crime, which I also read as my first wildlife crime book. So you can buy that. And there are a couple of books published by WWF under traffic on wildlife crime. That will be good references which you can use. So I'll go to the next question. अपडेट होता है उसमें क्या पता नहीं, मतलब उसमें क्या चेंजेस हुआ है कि वो पहले पता कैसे चला। शिवम, यू हैव अ क्वेश्चन। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में जो अपडेट होता है, जब वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में अपडेट हो जाते हैं, दैट कम्स आउट इन अ गजेट नोटिफिकेशन all over the country, then you can understand what are the updates came in the wildlife protection act. The easiest way, and also most of the books will have a key which will tell you that ये एक्ट में क्या चेंजेस हुआ है, मतलब ओमिशन कहाँ पर हुआ था, क्या कहाँ पर एडिशन हुआ था, कुछ बुक्स में उसका मार्किंग्स रहते हैं, उससे आपको पता चल जाता है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुआ है। Rishi, if FD is not responding, then can we approach any other authority? Yes, of course. If the forest department, the local forest department, is not responding to your queries, always you can inform the Wildlife Crime Control Bureau in writing. So there are regional Wildlife Crime Control Bureau officers. मतलब आप उनको लिखे कंप्लेंट दे सकते हैं और उन लोग एक्शन लेंगे। और आप जब गवर्नमेंट के साथ आप जब डील करते हैं, आपको एक चीज करना जरूरी है, आप जो भी आपका कंप्लेंट है, यू शुड गिव इट इन राइटिंग। मतलब आप उसको एक कंप्लेंट लिख के दे दो और या फिर ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप मेल कर दो, तो देन इट बिकम्स एन एविडेंस दैट यू ऑलरेडी कंप्लेंट, सो देन दे विल टेक एक्शन। मतलब आप फोन पर फोन करके आप किसी को बताएंगे सर यहाँ पर क्राइम हो रहा है, वहां पर क्राइम हो रहा है, पीपल वोंट रिएक्ट। योर इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जब क्राइम पे जब बात करते हैं, योर द इंटेलिजेंस विच यू आर गिविंग should be actionable, should be on time, and should be precise. So if you give that, usually people will take action. Okay. How come many peacocks and they dance in lockdown in Mumbai? Sudha Muralidharan. Sudha, that is, the peacocks are there in that region, and are finding there are not too many vehicle traffic, and they feel good and they just dance on the road. That is what peacocks are supposed to do. I mean, we are finding peacocks in Kerala also nowadays. So peacocks are happy because there are not much of people movement. Somebody is asking what is Kida JD and why it is not under Wildlife Protection Act. Cordyceps is actually the fungal growth on a moth of it's a fungal growth on a larva, and it is not yet under the Wildlife Protection Act. I can't answer it why exactly it is not under the Wildlife Protection Act. There may be reasons, and there are some local communities which are depending on this. Controlled trade is happening. The collection of Cordyceps aka Kida JD is collected by local communities, and there are some cooperative societies which are under the government control, which is where the trade is regulated. If it is brought under the Wildlife Protection Act, then the trade in wildlife products cannot happen. So that is why probably they are not kept it in under schedule. How to handle when there is wildlife crime? How you deal with locals? Copperhead, I don't know. I mean, your name seems to be, screen name is Copperhead. So Copperhead, you have to be very clever when you deal with communities in a wildlife crime situation. Don't go for an absolute confrontation. You have to ensure that it depends on the situation, what kind of a situation you're dealing with. If you're dealing with a single poacher who is part of the community and the community is trying to protect, then there are multiple methods. I mean, it's about how your field craft and tactics, how you deal with a situation. That all I say is that you watch out who is the troublemaker, isolate the trouble. There are multiple methods to deal with that. Don't think that absolute force, like you go with about 100 policemen and beat them up and do it. There are methods. I mean, it depends on the strategy of the person who is actually leading the operation. Recently, my team participated or assisted the UP Forest Department in an operation. UP में हमारे team
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के साथ कुछ काम किया था। तो वहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर, जो टीम लीडर था WCCB से, उन्होंने जो स्ट्रैटेजी जो अपनाया, मतलब एक ट्रिकी और रिस्की एरिया था, वहां पर उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाया, वो सबसे पहले एरिया को स्टडी किया, फिर जो लोकल लीडर्स है उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया और उनको बोल दिया भाई हमको ये हमारा एनफोर्समेंट का एक्टिविटी करना है, आप बिल्कुल कोऑपरेट कीजिए। उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर प्रॉब्लम हो रहा था, बट ओवरऑल इट वाज गुड। सम प्लेस यू हैव टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द पीपल। अक्षय, दैट इज नॉट करेक्ट। IPS IAS IFS, मतलब ये तो आप सीधा वैसे एक आरोप लगाते हैं भाई एक दूसरे को सब जानते हैं। देखो ऐसा नहीं है, ये लोग भी चेंज हो जाते हैं ना। आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थोड़े हमेशा वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहता है। और एक चीज होता है, जब मतलब मैंने भी काफी ये देखा है, मतलब किसी का कैंपस में पीकॉक्स घूम रहा है और बगल वाले ने जाके कंप्लेन कर दिया भाई साहब उसने उस पीकॉक को बंद करके रखा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जब देखेंगे, वो पीकॉक के लिए वो भी अपना हैबिटेट है। यदि कोई आदमी एक जानवर को, वाइल्ड एनिमल को पिंजरे में बंद करके रखा है, अपने पेट बना के रखा है, तभी आप अरेस्ट कर सकते हैं। वैसे आप जेनरिक नहीं बता सकते हैं। राज सा, any clause for cruelty to captive wild animals? No, I don't think. When it comes to Wildlife Protection Act, we don't talk about cruelty. Wildlife Protection Act clearly mentions that no person can keep a wild animal as pet in his custody. So that's very clear. Whether there is cruelty or not, you don't look at the cruelty angle. आपके पास यदि wild animal है तो उसमें क्रूअल्टी नहीं देखते आप, उसको कितने अच्छे रखे कितने खराब रखते वो नहीं देखते आप, इलीगली एनिमल को अपने कब्जे में रखे, दैट कम्स एज अ क्राइम। Where are coral products mostly sourced from India? Oh, okay, that's an interesting question. Coral products, all the corals in India are protected under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. So if you find any natural coral in anybody's possession, especially aquariums, if you are finding natural coral, I mean there are a lot of coral replicas available, but natural corals, if anybody is keeping, that is as good as keeping a tiger or a leopard or a rhino in captivity. Corals are protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. It is a it's a cognizable, non-bailable offense which has got a minimum of 3-year punishment. So possession of coral is illegal. Peacock feather is not under Wildlife Protection Act. It is exempted under the current version of the act, but in the new amendment there will be changes. Peacock feather is currently exempted because it has a religious connection, and also as there is an argument that peacocks shed a feather naturally and it is collected. So, but there is, as we all know, there is a lot of illegal trade happening. Illegal trade हो रहा है peacock feather पे, और उसके ऊपर अभी जो नया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो नया अमेंडमेंट आ रहा है, तो प्रोविजंस आ जाएगा. You cannot keep peacock feather also. Currently, it is exempted under the Wildlife Protection. Where are the coral? Okay, where are coral products mostly sourced from India? Corals are largely collected from Gujarat and Maharashtra coast. Gujarat coast is very clearly a source of coral collection. We have some understanding about coral trade from that area and used in aquarium industry largely. Who are all the different categories of people who are involved in wildlife crime in general aspect from locals? Sneha, that is a very generic question, but there are a lot of communities who are involved in wildlife crime as poachers, but then there are traders, there are middlemen. See, for example, in an organized wildlife crime, there could be a poacher who is a local who is not making much of a money, who is a shooter or a trapper, but then there is a local trader who makes a larger amount of money. For example, he buy ivory and sells to another fellow. Then there are other the actual players, like the actual godfathers of the trade. They actually don't hunt. They don't go to the forest. They don't kill an animal. They sit in one plush office or in a house in the middle of an urban area, and they just manage the trade over
phone calls and WhatsApp messages. So there are different types of people involved in this trade. So that it can be categorized as the poacher, the middleman, the trader, and the value addition person, like for example in ivory a carver, and then the buyer. Raj Shah, it's an incomplete question, like elephants in captive. Yeah, I think you're connecting with the earlier question. If an elephant is in captivity, then it attracts the provisions of the Wildlife Protection Act, and also if you are keeping an elephant, there are rules, captive elephant management rules in each state. If they are violating those rules, then it can be booked under provisions of those rules also. For research purpose, scientist or researcher can capture any animal or not? Yes, Jaydeep. The वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोविजंस है, आपको रिसर्च और साइंटिफिक पर्पस के लिए आप वाइल्ड एनिमल को कैप्टिविटी में ले सकते हैं. उसके लिए आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेना जरूरी है. अक्षय, गुजरात में जो वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है उसके बारे में आप गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबसे पहले बताइए, और यदि आपको वहां से कोई रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को बता सकते हैं. WCCB का वेबसाइट है, wccb.gov.in वेबसाइट है, और वेबसाइट में जाके आप WCCB का रीजनल ऑफिस का डिटेल्स ले सकते हैं. वहां पर आपको ईमेल आईडी, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ मिलते हैं. और वहां पर एक ऑनलाइन फॉर्म भी है जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं. मतलब वो आप जब कंप्लेन करते हैं वो कहीं पे चला नहीं जाते, मतलब कहीं it does not get lost, it will be answered by somebody. Any other questions? Rishi, I think we went from 1 hour to 1.5 hours. I think that is enough. Yeah. दूसरा सेशन करते हैं, स्पेशली फॉर प्रोटेक्शन एक्ट. हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रॉब्लम इतना है ऋषि, उसमें डिस्कशन होना चाहिए, वरना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का इट नीड्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन. और मैं किसी को मतलब आई कांट सी एनीवन, I can only look at the comments and I can reply to those comments. So let's plan that. बॉलीवुड और से काफी वाइल्ड एनिमल्स को पेट दिखाया जाता है. बॉलीवुड और साउथ इंडिया का बहुत से मूवी में वाइल्ड एनिमल्स को, आप एक एग्जांपल दे दीजिए अक्षय. और आज के तारीख में काफी CGI ग्राफिक्स का यूज भी करता है ना, तो हमेशा जो आपको जो सब कुछ दिखता है वो एक्चुअल नहीं है, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स भी हो सकता है. WCCB का वॉलंटियरिंग ऑप्शन है, वो आप WCCB के वेबसाइट में देख लीजिए. WCCB वॉलंटियरिंग का ऑप्शन जब आते हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक पैनल जो है आपको एप्लीकेशन जो है उसको रिव्यू करेगा, और आप WCCB वॉलंटियर तरीके ज्वाइन कर सकते हैं. Guys, I tried my level best, because without seeing anybody, talking to my computer screen is also very tricky. So if you have any questions, you can always email me or connect with me in Facebook and ask me questions. I'm always happy to answer you whatever I know about wildlife trade. I know this was not a complete session, but I tried to make it as engaging as possible. That's it. Rishi, if you can come over and formally close the session. Yeah, thank you so much for conducting this kind of session. दूसरा सेशन करते हैं, प्लान आउट करते हैं स्पेशली फॉर अपने एक्ट के लिए. स्पेशली वो एक कस्टमाइज करके अच्छे से प्लान करके करते हैं, ताकि आपको भी क्वेश्चन आंसर ज्यादा है और आप अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन कर सकते. ऋषि, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे पास सामने क्वेश्चंस है उसको आंसर करना में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमारे पास जो ऑडियंस है कई अलग अलग जगहों से है, कई अलग बैकग्राउंड से है, तो इतने सारे लोगों को एक चीज नहीं खिला सकते ना. सो विल प्रॉपर्ली प्लान करके वो करते एक बार, एक पूरा रजिस्ट्रेशन के साथ करके, जो इंटरेस्टेड है प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन लेके क्वेश्चन हम एक बार आप देबो से यार अमृत से भी बात कर लीजिए, हमारा जो टीम है उनके साथ भी हम थोड़ा सा अच्छे से प्लान करके, ये भी हमारा क्विक प्लानिंग था ना, तो कर सकते हैं.
और हाँ, देवो सर से बात कर लेता हूँ मैं, और एक बार वो हाँ। पूरा रखते हैं एक्ट के लिए पूरा स्पेशली, क्योंकि पब्लिक को अप्रोच भी अच्छा है, लोग जानना भी चाहते हैं, तो एक बार वो प्रॉपर्ली हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग कुछ नहीं करते ना, घर के अंदर बैठे हैं, और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या अच्छा काम कर सकते हैं। सही बात है, सही है। थैंक यू सो कर मच सकते। सर फॉर जॉइनिंग अस। ऑल राइट ऋषि, थैंक यू एवरीवन। ओके।